Hello friends, today we will discuss about computing functions of Turing machine. How a Turing machine can perform computing on functions. For example, if fx is equals to x plus 1, it means that if x is given to you, then fx function will provide you x plus 1 means implemented the value of x by 1. So how it is possible with the help of Turing machine? So this all the things can be called as computing functions with the Turing machine. Now you can see very simple example by which you can learn that how can we design the Turing machine for such type of function. So initially we will start a simple example, that is, suppose if n is equals to 2 or x equals to 2, in this case we will use the unary number simple. For example, suppose x is equals to 2. So in this case we will represent the value 2 in that format, that is the unary number. If suppose x equals to 5, then in this case we will represent in the form of ones, that is the unary number. So these numbers are basically placed into the tape of the Turing machine, and after the completion of this string, the simple blank symbol will be there, because this is the basic property of Turing machine execution. Clear? So how can we perform the things? How can we perform the computable functions with the help of the Turing machine? We can see here very clearly. So the example is, for example, if fx equals to x plus 1 or fn equals to n plus 1. So this is a very simplest example to design a Turing machine for this computable function. So the simple question is n equals to, suppose in this case, suppose n equals to 2. So this is the way to represent the n. Now, after completion of the execution, the machine must return the value 3, because here the n is equals to 2. So after completion, the value will be 3. So it is the simple funda that after this n, one this one blank must be converted into 1. So it will increase the value of n. So how is it possible? It is possible. Suppose n equals to 3. So start the execution of the machine. In this case, the one is read by the machine or Turing machine, and after this one is replaced by 1, and machine will move to the right hand. And after this one, machine write the 1 and move to the right direction. It means that हम 1 को रीड करेंगे और सारे 1 को रीड करते हुए हम 1 का 1 ही रखेंगे, जितने भी 1 होंगे, और जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? लास्ट में ब्लैंक। तो जैसे ही ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इस ब्लैंक का क्या कर देंगे? हम जस्ट इस ब्लैंक का, जैसे ही ब्लैंक मिला, हम इस ब्लैंक का क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, और उसके बाद जो दूसरा ब्लैंक मिलेगा उस ब्लैंक का ब्लैंक रखेंगे, और हम लोग कहाँ आ जाएंगे? हॉल्टिंग स्टेट पर, मीन्स वी आर इन फाइनल स्टेट. So this is the simple funda for constructing a Turing machine computing function fn equals to n plus 1 or fx equals to x plus 1. क्लियर? और अगर हम इसका डायग्राम की बात करें तो हम डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि सपोज हमें 1 मिला तो हम लोग इसको लूप पर लगा देंगे, क्या कि 1 मिला तो 1 का हमें क्या रखना है? 1 ही रखना है, और डायरेक्शन हेड की क्या होती जाएगी? राइट। तो हमारा हर बार क्या होगा? 1 इज रिप्लेस बाई 1 और डायरेक्शन विल राइट. इट मीन्स दैट वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग if we are getting 1. And then suppose if we are getting here blank, अगर हमें एक ब्लैंक मिला पहला वाला, जैसे ही ब्लैंक मिला तो ब्लैंक को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? 1 में, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? राइट. और नाउ स्टेट विल बी नेक्स्ट वन, दैट इज सपोज Q1. अगर हमारी पहली वाली स्टेट Q0 है तो ये वाली स्टेट हमारी क्या हो जाएगी? Q1. क्लियर? एंड आफ्टर दैट अब हमें, अगर हमें दूसरा ब्लैंक मिलता है तो अब हम क्या करेंगे? उस ब्लैंक का तो हम ब्लैंक को रीड करेंगे और ब्लैंक का क्या रखेंगे? ब्लैंक ही रखेंगे, और डायरेक्शन यहाँ पर आप लेफ्ट राइट कुछ भी यूज कर सकते हो। तो डायरेक्शन सपोज हमने राइट रखा, और नाउ वी आर इन फाइनल स्टेज. सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर fn equals to n plus 1.
I think it is clear to all. Start to computing 2's complement of any number. So it is very simple fundamental rule. And if we are moving from right to left, then if there is zeros, then we don't require to replace zeros with any number. So just if we are getting zero, then write the zeros and move to the left. If we are getting one, so in the first one, that will not be changed. And after one, we have to change zeros to one and one to zero. Means जैसे ही हम लेफ्ट मूव करेंगे हमें जीरो मिलेगा तो देयर इज नो प्रॉब्लम. whenever we get the one, पहला वन, जो पहला वन मिलेगा उसको तो हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे. मीन्स वन का वन रखेंगे और डायरेक्शन लेफ्ट होगी. और उसके बाद क्या होता है, बाकी के हम हमेशा क्या करते हैं, जीरो को वन और वन का जीरो, जो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग करते थे, हम वो करते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने बताया आपको, हम राइट से लेफ्ट चलेंगे. तो बाकी का हम क्या करेंगे, शुरुआत में हमारा टेप को स्टार्ट, टेप पर हमारा वन और जीरो कुछ भी हो सकता है. सो द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू मूव जीरो और वन, जो भी मिलेगा हम जीरो का जीरो रखेंगे, डायरेक्शन इज राइट. वन का वन रखा, डायरेक्शन इज राइट. और हम लोग कहाँ पहुंचे, जस्ट वी आर रीचिंग टू द ब्लैंक सिंबल. इट मींस वी आर ऑन द लास्ट सिंबल ऑन द टेप. और ब्लैंक का ब्लैंक रखने के बाद जैसे ही हम लोग वापस आएंगे, नाउ वी विल सी वेदर इट इज जीरो और वन. तो अगर हमारा जीरो है तो जीरो का जीरो रखेंगे और हम वापस चलते जाएंगे और लेफ्ट चलते चले जाएंगे. और जैसे ही हमें पहला वन मिला तो फर्स्ट वन का हम वन ही रखेंगे और डायरेक्शन लेफ्ट. और पहले वन के बाद हमें जो भी मिलेगा वो सारा चेंज होगा. मींस जीरो इज चेंज टू वन एंड वन इज चेंज टू जीरो एंड अगेन डायरेक्शन इज लेफ्ट. और लेफ्ट जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, ब्लैंक. तो ब्लैंक का हमें क्या रखना है, ब्लैंक रखना है और डायरेक्शन इज राइट. वी आर ऑन फाइनली. So this is the simple example to execute the computable function for 2's complement. So this is the simplest example or simple form for that. Now next one is the, you can see here, fx plus y is equals to x plus y, or you can see fx comma y is equals to x plus y. This is very important for the examination point of view also. It means that x and y are what? X and y are two numbers, right? And zero is what? Zero is the separator between these two numbers. So our objective is very clear in this case, that we have to eliminate this zero by one. And now this one will be cancel out in the tape and it will be converted into blank. So the simple, it can perform as the addition of two number, that is fx comma y is equals to x plus y. So this is the simple logic behind this x plus y. Now we can see here the how it can be performed. For example, clearly we can see the example very easily. Suppose this is suppose x, that is 2, and this is suppose separator between x and y. Suppose y is 3. Yeah. This is x and this is now y. Now you have to perform the addition of x plus y, and after this y there will be blank symbol on the tape. So how is it possible? In this case, we are reading this one is replaced by one, this one is on the loop. ये वन को हम रीड करेंगे, वन का वन रखेंगे और डायरेक्शन क्या होगी, राइट. कब तक, जब तक कि हमें सेपरेटर नहीं मिले. सेपरेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज सेपरेटर इंडिकेट दैट एक्स इज कंप्लीटेड नाउ. तो जैसे ही हमें सेपरेटर मिला वन, जीरो, जीरो सेपरेटर इज कन्वर्टेड इनटू वन. इसको मैंने क्या किया, इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. इसको मैंने क्या किया, वन कर दिया, क्लियर. और डायरेक्शन इज राइट. अगेन वी आर रीडिंग हियर this one, this is the part of by. So this one is replaced by one and direction is right. Means we are not doing change anything in this, right? So finally we will move on this blank symbol. It means we are completing by. So after this blank means blank is हम read करेंगे और blank का blank रखेंगे. डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट. जैसे ही हम लोग लेफ्ट पर आएंगे, लेफ्ट आने का मतलब क्या हुआ, हेड हमारा इस लास्ट वाले वन को रीड करेगा. तो इस वन को रीड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन को रीड किया एंड नाउ दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक एंड यू आर मूविंग टू द Q3 स्टेट. अब हम Q3 स्टेट पे आ गए एंड डायरेक्शन इज राइट. एंड आफ्टर राइट वी आर अगेन
reach to this state, this symbol B, that is the blank, and we are reaching to the final state. So this is the simple computing function for fx comma y is equals to x plus y. So on the same way, we can also perform x minus y and other computing functions. Now, next example is very important example to design a Turing machine to compute Fn equals to n minus 2 if n is greater than equals to 2 and Fn equals to 1 if n is less than 0. So the same question can be asked in the form of Fn equals to n minus 2 if n is greater than equals to 2, otherwise 1. So both are the same thing, right? So how can we start to design this machine, Turing machine? It is very simple machine that we can consider it in the form of like this. Suppose n equals to 4. It means that this is the value of 4 in unary number, and in this case you have to compute n minus 2. This is the simple fundamental rule that we have to eliminate these two. So answer should be this one only on the A. If your input is 4. Suppose your input is 3. In this case, just minus this one, and now this one will be uh, shown onto the. So how is it performed? You can see here. Suppose this is suppose 4, right? So start with 1. There is, if we read this one 1, the 1 को हमने read किया, 1 का 1 रखा और डायरेक्शन क्या हो गई, right? You can see here from the initial state. क्लियर? अब सेकंड 1 को चेक करिए. इस सेकंड 1 को मैंने चेक किया, सेकंड 1 का मैंने 1 रखा, सेकंड वाले 1 का, और उसके बाद हम डायरेक्शन राइट आ गए. सेकंड वाला 1 को भी हमने चेक कर लिया. अब थर्ड वाले 1. अब सेकंड के बाद थर्ड आए, फोर्थ आए, कुछ कितने भी 1 आएंगे तो हम लोग लूप यूज करेंगे. ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन हियर. क्या रिस्ट्रिक्शन है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. अगर हमारा इक्वल्स टू 2 है तब ये रखना है, और लेस देन वाला केस है तो हमें वैल्यू उसकी 1 रखनी है. इस वजह से तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को ये चीज कंडीशन चेक करनी पड़ेगी 2 वाली. तो ये 2 की वजह से हमने क्या किया, एक यहाँ पर चेक किया 1 को और दूसरे 1 को यहाँ चेक कर दिया. क्लियर? इक्वल टू की कंडीशन पूरी हो गई. अब ग्रेटर देन मीन्स 2 से आगे कितने हैं, तो अब जो भी होंगे उसको हमने लूप पर घुमा दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले 1 पे भी हमारा बन रहा, इस 1 का भी बन रहा, ठीक है. और ये हैश का मतलब है ब्लैंक. तो हम लोगों ने अब लास्ट में इसको रीड करने के बाद हमारी मशीन क्या रीड करेगी, हैश साइन और ब्लैंक साइन एक ही बात है. जस्ट वी कैन रिप्रेजेंट दिस साइन बाय यूजिंग ब्लैंक बी और बाय यूजिंग हैश साइन, राइट. जैसे ही हम हैश साइन पे पहुंचे तो हैश साइन के बाद क्या होगा कि हैश का हैश रहेगा, एंड नाउ आवर मशीन विल मूव टू द लेफ्ट डायरेक्शन. जैसे ही हम लेफ्ट पे आ गए यहाँ पर, तो लेफ्ट में आने के बाद क्या हुआ, हमने पहले वाले 1 की जगह क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया और डायरेक्शन लेफ्ट हो गई. तो नाउ दिस 1 इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैंक एंड डायरेक्शन इज लेफ्ट, और वी आर रीचिंग टू द स्टेट Q. और जैसे ही हम Q4 पे आ गए तो आपसे क्या कहा गया है, फिर देखिए आप इस दूसरे वाले 1 को भी आपने क्या कर दिया, हैश मतलब ब्लैंक कर दिया. तो दूसरे वाले को भी मैंने ब्लैंक कर दिया और मैं कहाँ आ गया, ऑल्ट स्टेट में आ गया, फाइनल स्टेट में आ गया. तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है. ठीक. अब दूसरा भी केस समझ लेते हैं इसका हम. दूसरा केस क्या बताया मैंने अभी आपको कि n fn इक्वल्स टू 1 इफ n इज लेस देन 2. 2 से कम है तो, अगर मान लीजिए 2 से कम है मतलब 1 है, राइट. अगर मान लिया हमने 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर 1 है तो 1 का 1 रहेगा, आगे जाएगा, राइट. तो 1 का 1 रहा, आगे राइट हो गया. अब राइट जाने के बाद इसके बाद 1 है तो आगे क्या होगा, ऑब्वियसली ब्लैंक होगा. तो अब हम इस डायरेक्शन में नहीं जा सकते, है ना. इस डायरेक्शन में कब जाएंगे, जब हमारे पास एक से ज्यादा 1 होंगे. क्लियर? तो अब हमारा एक ही 1 है, तो एक 1 तो हमने रीड कर लिया, देखिए इसके बाद डायरेक्ट हमें क्या मिला, ब्लैंक. तो जैसे ही हमें ब्लैंक मिला, इसको हैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक ही बात है, मैंने बताया भी था आपको. तो हैश का हैश रखा, डायरेक्शन लेफ्ट रखी आपने, और हम कहाँ आ गए, फाइनल स्टेट. तो देखिए आउटपुट आपका क्या आ रहा है, 1 के ये हमारा. अब एक कंडीशन और चेक कर सकते हैं आप. मैंने n इक्वल टू 4 लिया था पहले, फिर मैंने n इक्वल टू 1 लिया. अब मैं n इक्वल टू 2 लेके चलता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं. 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, fn इक्वल टू 2 लूंगा तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट. तो देखिए पहला मैंने 1 लिया, 1 का 1,
और दूसरा बन लिया 1 का 1, आगे चले गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? ब्लैंक। ब्लैंक मतलब हैश, कुछ भी यूज कर सकते हो आप लोग, जैसा भी आपको ठीक लगता है। मैं भी इसको यूज करता हूँ इसी तरीके से जैसे इसमें। ठीक है, देखिए अब मैंने यूज किया यहाँ पर हैश, ये ब्लैंक की तरह यूज। तो देखो पहला 1 हमने रीड किया, 1 का 1 आगे, दूसरा वाले 1 का 1 रखा, राइट आ गई। अब हमें क्या मिला? हैश साइन। जैसे ही हैश मिला तो हैश का हैश डायरेक्शन लेफ्ट, लेफ्ट हो गई। लेफ्ट आने के बाद नाउ वी आर इन स्टेट Q3। Q3 स्टेट पर हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट आने पर 1 मिला, तो 1 को भी किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? हैश में, और डायरेक्शन अगेन लेफ्ट, और नाउ स्टेट इज Q4। तो Q4 पे क्या मिला आपको? 1। 1 मिला, 1 मिला तो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? हैश में। ठीक है, 1 भी कन्वर्ट हो गया ये वाला हैश में, और आप कहाँ गए? फाइनल स्टेट में। अब आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हो आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। तो अगर हम 2 लेंगे एन की वैल्यू, तो 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब दिस एग्जाम्पल इज फुलफिल ऑल द कंडीशन if n equals to 4 or greater than 2, less than 2, equals to 2, whatever. So this is all about the computing function for Turing machine or construction of Turing machine for computing function. तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अगर इनकेस अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे लिख सकते हो कमेंट में। तो ये आप लोगों की डिमांड की वजह से मैं इसको यूट्यूब पर डालता हूँ, है ना। आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, और आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज इसको बताइएगा जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस चैनल।